Hello all. I welcome you all on behalf of Vidigya, your best pal for CLAT preparations. We at Vidigya have come up with a series of sessions wherein we will do a 360-degree analysis of all those topics which are very relevant and very prominent as far as CLAT 2021 is concerned. So our today's topic for discussion is India-Pakistan Basmati rice issue. Okay, it was recently in news, so that's why we had taken this topic into consideration. There is another reason. So if we look at the CLAT 2021 actual exam paper, I'm telling you 4 out of 7 passages. So there were total 36 questions in all in CLAT 2020 actual exam paper out of 7 passages, out of which 4 out of 7 passages were those which had which were related to international news and which is having a direct or an indirect relation with India. So that's why this topic holds very relevant and very important as far as CLAT 2021 is concerned. Okay, so if we look at CLAT 2021 paper, actual exam paper, first question was related to the economic package, uh, 20 lakh crore announced by our honorable prime minister. The second passage was talking about basically about banking, economy, right? OMO, open market operations. Third passage was regarding Rafale. So this was the deal between India and France. This is the first international topic we can say as far as CLAT 2020 is concerned. जहां पे क्या हुआ, जहां पे इंडिया का किसी दूसरे देश के साथ जो बायलेटरल ट्रेड या रिलेशन है उसकी बात करी, तो ये पहला टॉपिक हो गया, राइट? जो भी मैंने आपको 4 टॉपिक बताया उसमें फोर्थ टॉपिक वाज फोर्थ टॉपिक वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट फोर्थ टॉपिक वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया नेपाल रिलेशंस, कि इंडिया नेपाल रिलेशंस, इट वाज टॉकिंग अबाउट द 3 एरियाज, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी, राइट? सो 2 टॉपिक ये हो गए. फिफ्थ टॉपिक वाज टॉकिंग अबाउट इन द एक्चुअल क्लैट 2020 एग्जाम पेपर वाज टॉकिंग अबाउट नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, right? So 2 out of 5 I'd already told you. Sixth passage was talking about SARC, South Asian Association for Regional Cooperation, or seventh was talking about the US-Israel Palestine deal. So out of 7, 4 पैसेजेस, 4 पैसेज ऐसे थे जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कुछ रिलेशन इंडिया के साथ था. I know seventh जो है, if you see the paper CLAT 2020 actual exam paper, seventh question was not directly or anywhere related to India, but in the overall economy और overall global market बहुत important था, इसी वजह से एग्जाम में था. बट 3 टॉपिक, दैट इज इंडिया फ्रांस राफेल डील जो हुआ, थर्ड. सेकेंड वन वाज दिस इंडिया नेपाल रिलेशन एंड द लास्ट इज सार्क. ये तीनों टॉपिक में कहीं ना कहीं इंडिया का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन था. इसी वजह से ये टॉपिक भी, इंडिया पाकिस्तान बासमती राइस इशू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज क्लैट 2021 इज कंसर्न. ठीक है, स्टार्ट करने के पहले विल जस्ट लुक एट द फ्लो कि अपन किस तरह से आज इसमें आगे बढ़ने वाले हैं इन इस पीपीटी में. In the initial phase, what we'll do, we'll try to know कि why this particular thing was in news recently, कि क्या ऐसा कारण था कि ये particular चीज न्यूज में थी. उसके बाद then we'll have a look at India's angle on it, कि इंडिया के कौन कौन से रीजन में बासमती होता है, इसका इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स. देन विल ऑल्सो लुक एट पाकिस्तान एंगल एज वेल, कि उनका क्या कंटेंशन है इसके प्रति, उनका क्या कहना है. ठीक है, एंड लास्ट में इससे रिलेटेड एक बैक डेटेड स्टोरी है 1997 की, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, और एट द एंड ऑफ द दिस कॉन्वर्जेशन, कि जहां पे मैंने इंडिया का आपको बता दिया, पाकिस्तान का बता दिया, फिर ओवरऑल स्टोरी बता दी, उसके बाद में एक क्विज भी है जिसमें विच कंप्राइज ऑफ 6 क्वेश्चन, तो अपन वो भी करने वाले. सो गियर्ड अप एंड मजा आने वाला है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. We'll start with a positive note, that is a quote: "Arise, awake, and stop not till the goal is reached" by Swami Vivekanand ji. Okay, we are good to go. Okay, let's begin it. Okay, so why it was in news? What happened on September 11, 2020? That is recently, India had applied for an exclusive GI tag of basmati rice in European Union, claiming that it is an that is basmati is an Indian origin product. कि बासमती क्या है, इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट है. एक्सक्लूसिव जीआई लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, कहां पे? यूरोपियन यूनियन में. उसके 3 महीने, मतलब क्या होता है यूरोपियन यूनियन में, अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करी रिगार्डिंग जीआई, जो उनके लॉज है, दैट दे गिव्स यू 3 मंथ्स का टाइम, कि अगर किसी को भी कोई उससे आपत्ति है तो यू कैन ऑब्जेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन.
तो आपको पता ही है अपना जो पड़ोसी देश है दैट इज पाकिस्तान, और देयर इज ऑलवेज अ टसल बीन गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड आवर कंट्री। तो ये एक और इशू था जो अभी रिसेंटली न्यूज में था कि पाकिस्तान ने क्या किया। जैसे मैं आपको बताऊं 11 सितंबर को अगर इंडिया ने अप्लाई किया दैट इज, तो 3 महीने जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दैट विल एंड ऑन 10 दिसंबर, दैट इज अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 10 दिसंबर। पाकिस्तान ने क्या किया, 8 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन में क्या किया, इंडिया के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल किया। ऑब्जेक्शन फाइल किया। क्या कहा कि बासमती केवल इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट नहीं है, पाकिस्तान के भी कुछ एरिया जैसे हैं जहां पर बासमती का प्रोडक्शन होता है। हम लोग पूरा समझेंगे क्या स्टोरी है, पाकिस्तान में होता है नहीं होता है, इंडिया में होता है कौन से रीजन में होता है, राइट। सबको अपन कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके पहले यहां पे एक वर्ड आया है एक्सक्लूसिव जीआई टैग। देखिए एक चीज समझिए कि जीआई की अगर बात आ रही है, जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मैं आपको अगली स्लाइड में पूरा उसके बारे में बताने वाला हूं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली होता क्या है। बट यहां पर अगर मैं बात करूं, बासमती इतना बड़ा इशू इसी इसी वजह से हो गया बिकॉज बहुत कम एरिया जैसे इंडिया और पाकिस्तान ही मेजर चंक ऑफ बासमती का प्रोडक्शन करते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं दीज टू नेशंस आर द एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस, आई कैन से बासमती राइस। तो अगर कोई दूसरी कंट्री या किसी एक कंट्री को एक्सक्लूसिविटी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री का मार्केट शेयर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उस सब पे भी अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं बता रहा था आपको जीआई के बारे में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। Geographical indication or GI, it is an indication used in products that have a specific geographical origin. इसका मतलब कोई पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस बीकानेरी भुजिया, एक पर्टिकुलर एरिया को सिग्निफाई कर रहा है। या फिर यू कैन से मार्बल ऑफ मकराना इन राजस्थान विच इज वेरी फेमस। तो कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज जो उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करती है और वो वहां पे बहुत अच्छी प्रोड्यूस की जाती है और जितने स्टैंडर्ड्स है क्वालिटी उन सब का ध्यान रखा जाता है। सो उसको किसके अंडर में लिया जाता है, जीआई में। उसके बहुत से नॉर्म्स है, एलिजिबिलिटीज है, क्राइटेरिया। एक कश्मीर का सैफरन जो केसर अपन बोलते हैं, वो भी जीआई के अंडर में आता है इंडिया में। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी जहां की कोई चीज बहुत फेमस है और वो वहीं पे होती है, राइट। और उसका जीआई उन्होंने ले रखा है उस एरिया का पर्टिकुलर, तो वो किसके अंडर में आता है, जीआई में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। एंड पजेस द क्वालिटीज और रेप्यूटेशन। देखिए ये बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां, क्योंकि देखिए बासमती का प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल अगर कुछ रीजन में हो रहा है तो चावल, बासमती आखिर है तो एक चावल ही है, हालांकि उसकी कुछ क्वालिटी बहुत अच्छी है, चावल थोड़ा लंबा रहता है विच इज वेरी गुड फॉर बिरयानी, स्पेशली बिरयानी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि चावल सभी जगह होता है लेकिन उस एरिया को की पर्टिकुलर वो स्पेशलिटी, इसी वजह से वो जीआई के अंडर में आता है। क्लियर है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ एक चीज इसमें रह गई कि ड्यू टू दैट ओरिजिन, वहां से स्टार्ट होना चाहिए, इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह वो सब आ जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या होता है, व्हाट इज ट्रिप्स एग्रीमेंट? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यू कैन राइट इट डाउन, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आर्टिकल 2022 ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ डिफाइन करता है उसको। इसकी डेफिनेशन आई नॉट पुट इट इन हियर, द रीजन इज क्लैट 2021 में या क्लैट में बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, कोई डायरेक्ट ऐसी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, बट आपको ये ध्यान होना चाहिए कौन से आर्टिकल में आता है, दैट इज आर्टिकल 22 ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ। ट्रिप्स की फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ओके, इंडिया ने जीआई का ऑलरेडी यहां पे अपने यहां पे कानून बना लिया, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 which came into effect on 15th of September 2003. I am repeating it again, इंडिया ने जीआई का एक्ट इंडिया में बना लिया है और क्या नाम से, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 which came into effect on 15th of September 2003. क्लियर है? ओके, दिस इज द लोगो ऑफ जीआई टैग इन इंडिया, दिस इज द लोगो। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में बासमती राइस कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन से रीजन के लिए बहुत सूटेबल है, और अ, उसमें भी कौन कौन से रीजन में ये होता है, कितनी क्वांटिटी में होता है, कितना अपन को पैसा या कितना अपन इससे अर्निंग करते हैं। एक चीज तो अपन समझ गए कि बासमती के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को अगर जीआई मिल जाए तो उसके और बेनिफिट हो जाते हैं। अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो अगर जो कंज्यूमर्स है उसको क्या बेनिफिट है, इफ आई एम कंज्यूमिंग बासमती राइस, तो मुझे ये अश्योरेंस है कि बासमती है तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट ने सारे बेंचमार्क स्टैंडर्ड फुलफिल कर रखे हैं, और वो एक पर्टिकुलर लोकेशन या लोकेलिटी से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा ट्रस्ट आता है कि हाँ यार, इफ आई एम यूजिंग मार्बल ऑफ a particular region, or I am eating भुजिया of a particular region which has a GI और जो वहां का बहुत पॉपुलर है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि वी आर कंज्यूमिंग गुड कमोडिटी और गुड, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स को क्या रहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ फार्मर एंड आई एम प्रोड्यूसिंग बासमती राइस इन द रीजन विच इन विच इट हैज ए जीआई टैग, तो क्या होगा, मुझे एक अच्छा दाम मिलेगा, कहीं ना कहीं एक अच्छा प्राइस मिलेगा, बिकॉज वो एक मैं एक पर्टिकुलर रीजन में बिलोंग करता हूँ, कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड्स है बेंचमार्क्स है मैं उनको फुलफिल कर पा रहा हूँ, जो इंडिया में है या फिर ओवरऑल बाहर भी एक्सपोर्ट करने में भी। अब बात करते हैं इंडिया की, तो आप एक चीज मान के चलिए कि बासमती राइस का जो प्रोडक्शन है वो बेसिक ज्यादा फीजेबल, या मैं कह सकता हूं कि जहां सही इसका प्रोडक्शन होता है दैट इज, या जहां इसकी लैंड फर्टिलिटी सॉइल उसकी बात करूं तो वो इंडो गैग्नेटिक प्लेन होता है। इंडो गैग्नेटिक प्लेन ऐसा एरिया होता है विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बासमती राइस। या फिर अपन कह सकते हैं इंडिया का जो नदर्न पार्ट है या पाकिस्तान का जो नदर्न पार्ट है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है। अब अगर मैं इंडिया के नदर्न पार्ट की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, राइट, पंजाब हो गया। ये 7 ऐसे स्टेट्स है जहां इंडिया में बासमती राइस रजिस्टर्ड है, राइट। चावल का प्रोडक्शन और जगह भी होता है बट बासमती कहां पे रजिस्टर्ड है, इन 7 स्टेट्स नहीं है इंडिया में जीआई। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है एक्सपोर्टेड, द कंट्री हैज एक्सपोर्टेड 4.45 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ बासमती राइस। 4.45 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ बासमती राइस। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अराउंड जितना भी ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड होता है ऑफ बासमती राइस, 65%, यू कैन से ऑलमोस्ट 2/3 इंडिया ही उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और जो रिमेनिंग है वो पाकिस्तान करता है, और कुछ पार्ट, बहुत थोड़ा सा कुछ पार्ट, नेपाल भी इसका बासमती राइस का प्रोडक्शन करता है, बट मेजोरिटी ऑफ द चंक कहां पे प्रोड्यूस होता है, इंडिया में होता है। क्लियर है। इस स्लाइड में अपन ने समझा कौन से एरिया के लिए फीजिबल है बासमती राइस का प्रोडक्शन, इंडिया में कौन कौन से 7 स्टेट्स है, इंडो गैग्नेटिक प्लेन के बारे में समझा, प्लस इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, दैट इज 4.45 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ बासमती राइस ओवरऑल एक्सपोर्ट करता है। और उसका वैल्यू भी दे रखा है, वैल्यू इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एज फार एज क्लैट इज कंसर्न। क्लियर है, ये था इंडिया का एक। ओके, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एंगल क्या बोलता है कि पाकिस्तान में भी बासमती राइस का प्रोडक्शन होता है, अनडाउटेडली। जैसा मैंने बोला, नदर्न रीजन, नदर्न इंडिया, नदर्न पाकिस्तान, उसके लिए फीजिबल है। जैसे वहां के पंजाब एरिया हो गया पाकिस्तान का, या सिंध एरिया हो गया, उसके लिए बहुत फीजिबल है कि बासमती राइस का प्रोडक्शन, राइट। तो इंडिया में 7 स्टेट्स है, इन द सेम वे पाकिस्तान इज हैविंग 14 डिस्ट्रिक्ट्स। क्या है, 14 डिस्ट्रिक्ट जहां पे बासमती राइस का प्रोडक्शन होता है। देखो, प्रोडक्शन तो और जगह भी हो सकता है। इवन मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश ने भी काफी बार, आई थिंक 12 to 13 टाइम्स हैड अप्लाइड फॉर एक्सक्लूसिव this sorry 12 to 14 districts of Madhya Pradesh had applied for exclusive लाइसेंस, या फिर मैं कह सकता हूँ जीआई ऑफ बासमती, कि इन 7 स्टेट्स के अलावा मध्य प्रदेश में भी बासमती होता है, बट अभी तक मध्य प्रदेश को नहीं मिला है जीआई इन इंडिया फॉर बासमती राइस। पाकिस्तान की अगर अपन बात करें, पाकिस्तान एक्सपोर्टेड 5 लाख टू 7 लाख टन ऑफ बासमती राइस एनुअली टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये ओवरऑल आ गया 5 लाख टू 7 लाख। बट इसमें से अगर मैं केवल, क्योंकि यहां पे जो बात हो रही है, यहां पे जो एक्सक्लूसिविटी की बात हो रही है, जहां पे यहां पे इंडिया ने जो अप्लाई किया है वो कहां किया है, यूरोपियन यूनियन में। तो आउट ऑफ 5 लाख टू 7 लाख, 2 लाख टू 2 लाख 50,000 टन्स
ऑफ बासमती राइस क्या होता है, पाकिस्तान क्या करता है, केवल यूरोपियन यूनियन में। तो अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बात करूं, इट रफली कम्स अराउंड 30 to 35% ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्शन जितना पाकिस्तान कर रहा है, उसका 30 to 35% क्या कर रहा है, वो केवल यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है? ओके। नाउ ओनली पाकिस्तान हैज इनेक्टेड एन एक्ट एंड दस कैन फॉलो इंडियाज पाथ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आई विल टेल यू द होल स्टोरी कि किस तरह से वो चीज होने वाली, कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 1997 में इसके रिगार्डिंग आया था कंटेंशन, फिर इंडिया का एक्ट आया, तो इन द सेम वे पूरी स्टोरी में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। बासमती राइस इशू क्या है? देखिए, ये तो अपन को पता चल गया कि रिसेंटली सितंबर में 11 सितंबर में को इंडिया ने अप्लाई किया था फॉर एक्सक्लूसिव बासमती राइस। कहां पे? यूरोपियन यूनियन में। और 8 दिसंबर को पाकिस्तान ने उसके लिए ऑब्जेक्ट किया था। बट ये स्टोरी यहां स्टार्ट नहीं हुई, ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी 1997 में। यस, 1997। 1997 में क्या हुआ था, एक कंपनी थी राइस टेक इनकॉर्पोरेशन। आई एम रिपीटिंग द नेम अगेन, राइस टेक इनकॉर्पोरेशन, विच इज ए टेक्सास बेस्ड कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी है, टेक्सास बेस्ड कंपनी है। जिसने क्या किया, राइस टेक इनकॉर्पोरेशन ने यूएस के जो पेटेंट ऑफिस है वहां पे अप्लाई किया कि दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ अमेरिकन बासमती। अब एक चीज समझिए, अमेरिका को यह चीज पता चल गई थी कि एशिया में ही बासमती का प्रोडक्शन होता है, और उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान मेजोरिटी ऑफ द चंक क्या करता है, मेजोरिटी वी कैन से ऑलमोस्ट जितना भी होता है, मतलब मेजोरिटी ऑलमोस्ट जितना भी वहां पे प्रोडक्शन होता है वो इंडिया और पाकिस्तान ही करता है, क्योंकि कुछ पार्ट नेपाल करता है, राइट। बाकी तो इंडिया और पाकिस्तान पे ही सोली डिपेंडेंट है पूरा वर्ल्ड। तो अमेरिका की इस फर्म ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं अमेरिकन बासमती के नाम से निकालूं। तो उन्होंने बिल्कुल किया, पेटेंट ऑफिस में अप्लाई किया और उनको वहां पेटेंट भी मिला, और उन्होंने दो ब्रांड निकाल दी अंडर द नेम टेक्समती एंड कासमती। कि टेक्समती और कासमती क्या है, एक अमेरिकन बासमती है, और ये भी एक सिमिलर इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्वालिटी वो सब उस तरह से उन्होंने बताया कि राइस टेक इनकॉर्पोरेशन ने कासमती और टेक्समती का प्रोडक्शन चालू किया है अंडर द नेम अमेरिकन बासमती। बट और ये स्टोरी 1997 की। इंडिया ने क्या किया, इंडिया के उस समय दो एनजीओ थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने वहां पे दैट इज यूएस में जाके इसके खिलाफ क्या करा, पिटिशन फाइल करी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड, बिकॉज जो बासमती राइस का प्रोडक्शन है वो इंडिया और पाकिस्तान में ही होता है, जो उसकी फेवरेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है ऑफ सॉइल या फर्टिलिटी, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो वो बेस्ट सूटेबल कौन किसके लिए है, इंडिया पाकिस्तान या एशिया रीजन या इंडो गैंगनेटिक प्लेन के लिए, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में। तो काफी समय तक उस पर कंटेंशन चलता रहा, और एंड ऑफ द डे आउट ऑफ 20 जो इश्यूज थे उसके बीच में 15 ग्राउंड्स पे कहीं ना कहीं राइस टेक इनकॉर्पोरेशन खरा नहीं उतर पाया या अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया, और उससे वापस वो रिवर्स कर लिया गया और उसको नहीं दिया गया अंडर द नेम टेक्समती एंड कासमती। क्लियर? बट इंडिया उस समय ही इस चीज के प्रति अवेयर हो गया था कि ये कंडीशन अगर अभी आई है तो इन फ्यूचर भी आ सकती है, ये अभी बासमती पे आई है, इन फ्यूचर कोई दूसरे प्रोडक्ट पे आ सकती है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने खुद का एक्ट बनाया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और कब से इफेक्ट में आ गया, 2003 में। और धीरे धीरे, और इंडिया का पहला जो जीआई टैग है दैट इज दार्जिलिंग टी, उसके एक साल बाद, एक्ट बनने के एक साल बाद, दैट इज इन 2004 दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिल गया था इन इंडिया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, फिर बासमती राइस का भी इंडिया में जो 7 स्टेट्स अपन ने इंडो गैग्नेटिक प्लेन के बारे में बात करी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, इन सब के बारे में जो बात करी, जम्मू कश्मीर, तो इन सातों स्टेट्स, इन 7 स्टेट्स में क्या हुआ, इन 7 स्टेट्स को भी एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिल गया या एक्सक्लूसिव जीआई मिल गया कि हाँ इन 7 स्टेट्स में ही बासमती का प्रोडक्शन होता है। कब हुआ ये, मई 2010 में हुआ था। क्लियर है यहां तक? फिर धीरे धीरे जब स्टोरी आगे बढ़ी तो रिसेंटली क्या हुआ, मार्च 2020, देखिए इंडिया ने अपील कब फाइल करी, सॉरी एप्लीकेशन अप्लाई कब किया ईयू में, सितंबर 2020। बट पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने भी सिमिलर एक्ट कहां पे बनाया, पाकिस्तान में, अंडर द नेम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020, नॉट 1999, 2020 ये लिखा है। मतलब इंडिया ने जो एक्ट 1999 का था विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 15th सितंबर 2003, पाकिस्तान ने एक्ट बनाया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020। क्लियर है? और उसी के 5 से 6 महीने बाद क्या हुआ,
इंडिया ने ईयू में अपील फाइल कर दी, एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया कि हम वी आर द एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर्स ऑफ बासमती राइस और हमको एक्सक्लूसिव के लिए जीआई टैग मिलना चाहिए। बट फिर क्या हुआ, पाकिस्तान एकदम से उठा कि ये क्या हो गया, इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट आ जाएगा तो अपना क्या होगा, अपने फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने क्या किया, ईयू में वापस ऑब्जेक्ट किया। कब किया, 8 दिसंबर, जो अपन ने अभी पहले स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में ये चीज समझी थी। बट पाकिस्तान एक चीज भूल गया कि इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जीआई टैग के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एनी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपके देश में तो सबसे पहले आप क्या कराइए, जीआई दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बासमती राइस के प्रति ऑब्जेक्शन तो कर दिया पाकिस्तान ने बिल्कुल 8 दिसंबर को, बट बासमती राइस का खुद का ही जीआई टैग पाकिस्तान में ही नहीं था। इंडिया ने 2010 में अपने सातों स्टेट्स को क्या कर लिया था, सातों स्टेट्स में को जीआई टैग दे दिया था फॉर बासमती। बट पाकिस्तान ने एक्ट तो बना दिया था मार्च 2020 में, बट यहां तक जब ये इन्होंने अप्लाई किया तब तक इनके पास क्या नहीं था, बासमती राइस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं था। तो फिर इन्होंने क्या किया, आनंद फानन में उसको पाकिस्तान में रजिस्टर करा। 26 ऑफ जनवरी को वो रजिस्टर हो गया वहां पे इन पाकिस्तान बासमती राइस, और 27 ऑफ जनवरी को 2021 को क्या किया, पाकिस्तान के कॉमर्स एडवाइजर ने ये ट्वीट करके बताया कि बासमती राइस को क्या हुआ है, पाकिस्तान में जीआई टैग मिल चुका है। तो ये स्टोरी थी, 97 से स्टार्ट हुई, फिर 2003 में एक्ट केम इनटू इफेक्ट, 2004 दार्जिलिंग टी, 2010 जो सातों स्टेट्स 7 स्टेट्स उनको जीआई टैग मिल गया इन इंडिया। 2020 दैट इज मार्च की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने क्या बोलते हैं एक्ट बनाया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 2020। इन द सेम ईयर सितंबर 11 2020 इंडिया ने अप्लाई किया कहां पे, ईयू में, फॉर एक्सक्लूसिविटी ऑफ बासमती राइस। एंड 3 मंथ्स का ऑब्जेक्शन टाइम था, और 3 मंथ खत्म होने, दैट इज 10 दिसंबर को 3 महीने समाप्त हो रहे थे। तो उसके जस्ट 2 दिन पहले, दैट इज 2 डेज प्रायर, 8 दिसंबर को पाकिस्तान ने क्या किया, उसके प्रति ऑब्जेक्शन फाइल किया। और फिर तब उनको पता चला कि उनके वहां पे वो एक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, बासमती राइस को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है जीआई के अंदर, तो फटाफट उसको करा, और 26 जनवरी को वो हो गया, 27 को उनको मिल गया। तो ये पूरी कहानी थी बासमती राइस की, और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रेलेवेंट है एज फार एज क्लैट 2021 इज कंसर्न। इसी वजह से अपन ने इस टॉपिक को, टेकन दिस टॉपिक ऑन प्रायोरिटी, की अपन इसको अच्छे से करें और इसकी पूरी एक स्टोरी, बैकडेटेड स्टोरी, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो विल बी एबल टू सॉल्व इन आवर क्लैट 2021 एग्जाम। क्लियर है? और अब मैंने आपको बताया ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, समवॉट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्चुअल क्लैट 2020 एग्जाम पेपर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ें। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या है, पूरी स्टोरी अपन को समझ आ गई। द जीआई टैग वुड स्ट्रेंथन पाकिस्तान केस इन ईयू, बिल्कुल, क्योंकि वो पहले तो वहां पे रजिस्टर ही नहीं था बासमती राइस अंडर जीआई, बट अभी उन्होंने कर लिया। बट इंडिया इज फार अहेड ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग फॉर एक्सक्लूसिव टैग। At last, it may be granted to both the countries, but it will not affect India's बासमती एक्सपोर्ट। देखिए एक चीज समझिए, दो चीज हो सकती है, या तो एक कंट्री इंडिया को मिलेगा केवल एक्सक्लूसिविटी, या पाकिस्तान को केवल एक्सक्लूसिविटी मिलेगी, ये एक पॉइंट हो गया। बट उसके चांसेस कम है, बिकॉज इंडो गैग्नेटिक प्लेन जैसा आपने समझा, और दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है, दोनों देशों में इसका प्रोडक्शन होता है, राइट। तो जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज कि दोनों को ही जीआई टैग मिल जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान, उसके चांसेस ज्यादा है। दैट विल सी कि आगे क्या यूरोपियन यूनियन का क्या टेक आता है इसके रिगार्डिंग। एंड यही पूरी बासमती राइस की कहानी थी, जो अपने 97 से स्टार्ट करी और 2021 में अभी ये इशू चल रहा है। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको बोला था, जैसे ही स्टोरी अपन पूरी समझ लेंगे उसके बाद एक क्विज करने वाले, तो क्विज पे आ जाते हैं फटाफट। इट्स क्विज टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 1, in the year 1997 a US based company was granted a patent by the US Patent Office for basmati rice under the name Texmati and Kasmati. Which of the following has been replaced by one? The options are Rice Tech Incorporation, Texmati Incorporation, Ricemati Incorporation, Kasmati Incorporation. The correct answer is Rice Tech Incorporation, जो अपने 1997 का पढ़ा था, Rice Tech Incorporation. क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following incidents can be seen as the direct cause of the dispute between India and Pakistan on basmati rice issue? Direct cause, right? क्या है
we'll just look at the options. First option is India claim for exclusive GI tag in EU for basmati. Second, India exports more basmati rice in EU than Pakistan. Third, the rise of Pakistan exports has increased over the past years. Fourth, the rise of Indian exports of basmati has increased over the years. क्लियर है? ये चार ऑप्शन है. क्या बोल रहा है? द क्वेश्चन इज आस्किंग ऑफ which of the following incidents can be seen as a direct cause of the dispute between India and Pakistan on basmati rice issue? And the correct answer is option A, that India has claimed for exclusive GI tag in European Union for basmati rice. Okay, let's move ahead. Question number 3. Name the reason why India's export in European Union in terms of percentage has decreased over the past few years. उसका reason I'll tell you. The use of pesticides above the permissible limit by few Indian firms. देखिए ये चीज होती है कि यूरोपियन यूनियन की दिस थिंग शोज कि वो अपने जो पब्लिक है इन जनरल उनका कितना ख्याल रखते हैं. उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें इस अमाउंट में, मतलब इस प्रोडक्ट में इतनी मात्रा में ये होना चाहिए, इस कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इतनी मात्रा में लेड होना चाहिए या पेस्टिसाइड कोई भी जो भी इंग्रेडिएंट. तो ये बेंचमार्क्स थे. बट इंडिया की कुछ फर्म्स क्या थी, इंडियन फर्म्स वर नॉट एबल टू मतलब वो बेंचमार्क्स को मतलब फुलफिल नहीं कर पा रही थी, और वी कैन से क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए. तो इसी वजह से इंडिया का कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट क्या हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है ओवर द ईयर्स. एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है, बट जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है. That was question number 3. Now we'll have a look at question number 4. Which of the following is not correctly matched? Option 1, India, Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999. The question is asking about not correct, or we can say incorrect. The first is correct. Second, Pakistan Geographical Indication Registration and Protection Act 2020, जो मार्च में आया था, that is also correct. Third, Pakistan Geographical Indication Registration and Protection Act 2021, which is wrong. और fourth, Darjeeling tea 2004 में which got GI tag in India, the first GI tag in India, that is Darjeeling tea in the year 2004. That was question number 4, and the answer is option C. Let's move ahead. Question number 5. Which of the following statement is correct? Now it is asking about the correct statement. India accounts for 80% of global basmati rice trade. Use of the second option, use of excessive pesticide is the cause of declining Pakistan exports. Third, the time period for appeal against GI tag in EU is 2 months, not 2 months, that is 3 months. September से October, November, December. And India is the largest exporter of basmati rice, which is correct. That accounts for almost 2/3 of the overall global trade of basmati rice, India. The correct answer is option D. Now we'll just have a look at the last question, that is question number 6. Which of the following statement is incorrect? Again, it is asking about the incorrect option. So what are the options? First is TRIPS, that is trade related intellectual property rights. बिल्कुल सही है. APEDA. APEDA is Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority. क्या होता है अपेडा? ये पहले अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया. बेसिकली इंडिया में जो 7 स्टेट्स की अपन ने बात करी इंडो मैग्नेटिक प्लेन की, तो इंडिया दिस पर्टिकुलर अपेडा वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ठीक है, तो अपेडा ने क्या किया है, इन 7 स्टेट्स को इंडिया में जीआई टैगिंग के लिए पूरा प्रोसेस वगैरह कराया, फॉलो करा, तो अपेडा यहाँ पे आया. और अपेडा की फुल फॉर्म बिल्कुल सही है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. थर्ड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, बिल्कुल इजी. And the fourth, all are correct. And the options is the question is asking about the incorrect one. No one is incorrect. All the 3 options are correct. So option D is the correct answer. Okay. So यहाँ पे अपने क्वेश्चंस, यहाँ पे अपने बासमती राइस का पूरा इशू यहाँ पे खत्म होता है कि इससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी अपने पुट किए इसमें, और इसके अलावा भी और भी बन सकते हैं. बट कहीं ना कहीं अपन को एक पूरी स्टोरी पता चल गई, तो नाउ इट हैज बिकम क्वाइट इजी फॉर अस टू इसके बारे में और थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो और बेटर हो जाएगा. बट काफी चीजें अपन को इसके बारे में पता चल गई. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यस, वी हैड स्टार्टेड विद अ कोट एंड वी आर एंडिंग also on a quote, that is, don't count the days, make the days count. As we all know, there are countable number of days left for our exam.
सो इट्स हाई टाइम. सो ये कोट पूरा उसको नो कंक्लूड करता है कि हाँ, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट, बाय मोहम्मद अली. क्लियर? Okay, so be positive, stay logical, and stay ahead with Vidhya, your best pal for CLAT preparations. And for all this content and all the more information, you can just go on the link below, which is given in the description, and you will get all the stuff which is relevant and important as far as CLAT preparation is concerned. That's all from my side. Thanks for watching.